कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है एफआईआर करने, और वो अर्नब गोस्वामी। हमारे पास कुछ ये लगा कि अर्नब गोस्वामी पे जो ये कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अमित मालवीय, अर्नब गोस्वामी। लेकिन अर्नब हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जयराम रमेश को सब पता था, लखेरा को कुछ भी नहीं पता। जो कह रहा टर्की टर्की टर्की, और उसके बाद कह रहा इस पे आपको तसल्ली से बताया जाएगा बाद में। और ये घटना 20 या 22 सितंबर 2019 की है। तुर्की के साथ सारे संबंध खत्म होने पर आ गए, तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन 22 सितंबर को एर्दोगान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। अब हमने इसीलिए समझा कि सोचिए ये पूरा फेक नैरेटिव कैसे गढ़ा गया, ये पूरा षड्यंत्र इस देश के खिलाफ कैसे किया गया। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में बहुत गहराई से इन्वॉल्व थी। सर, एक थोड़ा सा जिक्र इस पे, आज एफआईआर की चर्चा हुई। मैंने देखा कि वो कांग्रेस के जो वही दो चार चुट्टे टाइप के पत्रकार हैं जो साथ हमारे कांग्रेस भी कवर कर रहा था, उसने कुछ चारा कि कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है एफआईआर करने की, और वो अर्नब गोस्वामी पे। हमारे पास कुछ ये लगा कि अर्नब गोस्वामी पे जो ये कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अमित मालवीय, अर्नब गोस्वामी पे। लेकिन अर्नब हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। किस बात के लिए एफआईआर है, जरा इसको जरा थोड़ी सी सुन लेते हैं। Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? That in 2019, Rahul Gandhi said that we must open a big office in Turkey, where a man called Mohammad Yusuf Khan was appointed to lead the extensive operations of the Congress party in Istanbul. I can understand if the Congress party has an office in Assam. I can understand if it is an office in Gujarat. But ladies and gentlemen, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi needs to tell us why they want to have an office in Turkey. Apparently, it is very important to build a large organization of the Congress party in Turkey. Because something about the Congress party is not right. Yesterday, they were asked a question about Turkey, and you should see the visuals when Jairam Ramesh and Pawan Khera keep passing the mic to each other. Then they push the mic to each other. Then one of them tries to push the mic down, because a question is asked to them that Turkey has fought with Pakistan against India. What is your view on Turkey? After that, there were the spectacular evasion, microphone theatrics between the two. They struggled to put together a coherent response. And in the end, Pawan Khera sheepishly deflected by saying, "Is par hum shigra aapse mukhatib honge." Complicated Urdu. I want to play that bite where it is quite clear that they do not want to commit that they are against the enemies of the nation. And there are only two things. You are for the enemies of the nation, or you're with the enemies of the nation on the one side, or you're against the enemies of the nation. As of now, the Congress party is with the enemies of the nation. So I want to ask you, if you're a Congress voter, are you also with the enemies of the nation? Ladies and gentlemen, enemy's friend is my enemy. And therefore, Congress party being for Turkey, change the hashtag, Kong for Turkey, is a matter of serious concern. Now watch this. Turkey boycott. टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर 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 You see, viewers, there is a problem I have with the Congress party more than with even Pakistan and Turkey. These are enemy countries. But a party that is operating in India is openly with our enemies. They have an agreement with China. They are dependent and friendly towards Pakistan. They are non-committal on Turkey. What kind of a party is this? How much more will this party compromise our national interest? They are joining hands with Turkey when they know they have a biggest arms supplier to Pakistan. Turkish drones have been used. Turkey has opposed Operation Sindoor. And Erdogan says Muslims are being massacred in India. Erdogan has interfered in the Kashmir issue. And Turkey has always taken a pro-Pakistan line. I have real doubts today. I have reason to doubt the Congress party. In any case, this family I don't trust, because following the principle of the UN resolution approach, Rahul Gandhi's whole family has put this country into trouble. His great-grandfather and India's unfortunate first selected PM rushed to the United Nations over Kashmir, stretching the dispute for decades. This family has compromised national interests repeatedly. Viewers, what do we do with such a party? Now let me put this in context.
One, their position on Turkey. They're a pro-Turkey party. And then Rahul Gandhi went and met the Pakistani lobby in the United States. He had extensive, detailed discussions with Ilhan Omar, the same person who passed the anti-India resolutions in the US. Apparently, the Rajiv Gandhi Foundation repeatedly got crores from the Chinese embassy. They signed an MOU with the Chinese Communist Party, and Rahul Gandhi went and had secret meetings with the Chinese officials in 20. Put everything in perspective. At the Nationalist Collective, we believe that we have to boycott Turkey and ban Turkey. But what do we do with this Congress party? This party, the Congress party, and this family, the Vadra Gandhi family, which at a time when they should have been for the country have attacked our national interest. Ladies and gentlemen, I'm clear where I stand. The party should be banned and boycotted. इससे ज्यादा नंगा क्या किया जा सकता है? दो तीन चीज इसमें है कि अब ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी वहां दफ्तर खोल रही है। पहला सवाल सर जरा गौर से सुनिएगा सवाल, उसका बारी बारी सब जवाब दीजिए। मतलब जयराम रमेश को सब पता था, लखेरा को कुछ भी नहीं पता था, जो कह रहा टर्की टर्की टर्की, और उसके बाद कह रहा इस पे आपको तसल्ली से बताया जाएगा बाद में। दूसरी बात, इसके जितने दलाल पत्रकार हैं वो सनसनीबाज, इस्तांबुल की मार्केटिंग में दर्जन भर वीडियो बना दिया। वो बलात्कारी पांडे का भाई घूम आया वो। ये इसका मतलब अर्नब ने इन सबको बेनकाब कर दिया। आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर करेंगे। ये चुट्टों का गिरोह कहता है कि सवाल पूछने का अधिकार सरकार से होना चाहिए। मेरे वॉल पे भी आके कुछ लोग लिखते हैं, मनीष जी पत्रकार को तो सत्ता से सवाल करना चाहिए। अर्नब जितना बेनकाब कर गया उससे ज्यादा क्या हो सकता है? इनको तो चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए, देश छोड़ के भाग जाना चाहिए। पत्रकार का जन्म ही सवाल पूछने के लिए होता है। पत्रकार को लगातार सवाल करने चाहिए, लेकिन पहले सवाल तो हो तब तो करना चाहिए। कि बिना सवाल के जबरदस्ती सवाल बनाते हो जैसे तुम लोग बनाते हो। आज मनीष जी जो मैं देख रहा ट्रेंड चल रहा, बड़ा हल्का फुल्का चल रहा, 8-9 हजार उसको ट्वीट थे कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी में जो एफआईआर करने की बात ये कर रहे हैं, तो अर्नब गोस्वामी ने उसको जो अभी पूरा आपने दिखाया उसमें एक बिल्डिंग दिखा दी कि या कांग्रेस मतलब कांग्रेस के दफ्तर के नाम पर दिखाई गई बिल्डिंग। वो अर्नब को चिन्हित करके नहीं कहा, लेकिन वो दिखाई गई है। और वो कोई इंटरनेशनल कांग्रेस कन्वेंशन सेंटर है, इस्तांबुल के अंदर है। तो इस बात पर सब लगे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर करा दो, बंद करा दो, फांसी चढ़ा दो। सब कांग्रेसी लगे हुए हैं। तो अभी इस पर आता हूँ, लेकिन पहले जरा दर्शकों को बता दूं ये क्यों लगे हुए हैं। ये भी जरा पाकिस्तान से कनेक्शन इसका समझिए। और मेरे ख्याल से मेरे दर्शक बहुत से होंगे हम लोगों के जो इसको जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का चाहे कोई न्यूज चैनल, एक भी न्यूज चैनल, एक भी यूट्यूब चलाने वाला ऐसा नहीं है जो अर्नब गोस्वामी को भर भर गाली न देता हो। पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो अर्नब गोस्वामी को गाली न देता हो। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल रिटायर्ड और जो कोई आ जाते हैं टेलीविजन पे, वो ऐसा एक भी नहीं है जो अर्नब गोस्वामी को गाली न देता हो। यानी पूरे पाकिस्तान के की आंखों में अगर कोई आदमी सबसे ज्यादा खटकता है पत्रकारों में भारत के, तो उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। और इसको जाकर आप अब तो खैर आजकल बंद कर दिया बहुत से प्रधानमंत्री मोदी ने, अन्यथा आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि सब ले देकर अर्नब गोस्वामी पर कि इसको गाली दिया करते हैं। एक तरह से उनका एक नियमित एक क्रम है। तो ये और अकेला है, और सबसे खास बात है कि अकेला है भारत का पत्रकार। अन्यथा बरखा दत्त की कैसी इन्होंने तारीफ की हम सब लोग जानते हैं। कांग्रेस की कैसी तारीफ हाफिज सईद करता है सब जानते हैं। तो ये एक तरह से पाकिस्तान से मिली ड्यूटी है इनको कि अर्नब गोस्वामी को गाली दो, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक अभियान चलाओ, सोशल मीडिया पे चलाओ। वो ड्यूटी जो इनको पाकिस्तान से मिली, कांग्रेसी उस काम को कर रहे हैं। बाकी इस्तांबुल में कांग्रेस का दफ्तर है कि नहीं है, इसमें अर्नब गोस्वामी भी क्या एफआईआर कराने जा रहे हो? अरे इस्तांबुल में तुम्हारे का दफ्तर है, तुमने बाकायदा उद्घाटन किया। मनीष जी जरा दिखाइए, मैंने अभी बिल्कुल ट्वीट किया है, रखी हुई थी कि इस्तांबुल में कांग्रेस का दफ्तर, जिसको यूसुफ खान करके क्या नाम उसका, एक वो जिहादी उसको चलाता है। जरा सबसे ऊपर होगा मनीष जी, जो पिन वाला ट्वीट है उसी के ऊपर। तो उसको कौन से तुम छुपा रहे हो? देश की आंखों में क्या धूल झोंकना चाह रहे हो? अर्नब गोस्वामी ने जो कुछ कहा तो बिल्कुल सही। और ये अंकारा जो तुर्की का शहर है,
वहां का अखबार है, हिंदुस्तान का कोई अखबार नहीं है। तो तुर्की में, और इसके आगे की कहानी जरा दर्शक सुनेंगे तो उसको आप और चौंकेंगे कि कैसी इनकी कैसी साठगांठ पाकिस्तान से बनी थी। खोल दीजिए पूरा जो है फोटो, दर्शक जरा हेडिंग देखें इसकी, इंडियाज मेन अपोजिशन ओपन्स ऑफिस इन तुर्की, और ये हिंदुस्तान का अखबार नहीं है। और जरा मनी जी खबर डेट दिखा दीजिए खबर की। 11 नवंबर 2019। 11 नवंबर 2019। और मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि दर्शक इस तारीख का बड़ा महत्व है मनीष जी, उस पर आता हूं कि 11 नवंबर 2019 और 370 कब हटी थी कश्मीर से? 5 अगस्त 2019, जरा करिएगा। और उसके बाद सितंबर में जो है यूएन के अंदर पाकिस्तान जाकर रोया गया था कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। तो वहां पर यूएन के कन्वेंशन हुआ था सितंबर में, उसकी तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन सितंबर में हुआ था, 20-22 सितंबर को हुआ था शायद। और उस कन्वेंशन में हाँ जरा ये खबर तो बनी थी, दिखाई दी आपने कि ये खबर इतने कंफर्म करना था, और कि सितंबर 2022 में जो कन्वेंशन हुआ उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा अगर हिंदुस्तान को गालियां किसी ने दी थी, हिंदुस्तान को कोसा था किसी ने, तो वो तैयब अर्गोदान था, यही जो है तुर्की का राष्ट्रपति जो आज भी है। इसने हिंदुस्तान को जमकर कोसा था और कहा था कि हम कश्मीर में बिल्कुल साथ खड़े हैं पाकिस्तान के, और ये 370 गलत हटाई, दुनिया भर के उसने जहर उगला था। और ये घटना 20 या 22 सितंबर 2019 की है। तुर्की के साथ सारे संबंध खत्म होने पर आ गए थे, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन 22 सितंबर को एर्दोगान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, और 11 नवंबर 2019 को यानी ठीक 1.5 महीने बाद अपनी कांग्रेस पार्टी तुर्की में जाकर अपना ऑफिस खोल रही थी। ये बता रही है खबर। इसको ये जरा छोड़िए, अर्नब गोस्वामी में तो गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा लाड़ उमर आया था पूरी दुनिया के अंदर जो है इनको तुर्की मिला था कि वहां जाकर हम अपना ऑफिस खोलेंगे। और उसका जो अब जरा खबर पढ़े देता हूँ, छोटी सी है कि इंडियाज मेन अपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ओपन एन ओवरसीज ऑफिस इन टर्की अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बाय द पार्टी। द स्टेटमेंट इशूड बाय द इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस on the Istanbul based office identified party member Mohammad Yusuf Khan to preside over the IOC in Turkey। तो ये जो ऑफिस खोला था वहां पे 11 नवंबर 2019 को, उसका करता धरता मोहम्मद यूसुफ खान को बनाया था उस गंगाराम सत्यनारायण बढ़ई ने। तो ये है कांग्रेस का चरित्र, कैसे भारत की पीठ में छुरा मारती है। ये ऑफिस की ओपनिंग बता रही है कि पूरा देश तुर्की से जला बैठा था, पूरा देश तुर्की के खिलाफ था, और कांग्रेस वहां पर जाकर अपना ऑफिस खोल रही थी। और ये आज अर्नब गोस्वामी को मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, घिन आती है ऐसे लोगों पे, घृणा होती कि ये भारतीय हैं। ये सोचिए, वो देश जो एकमात्र देश है जो खुल करके इस मामले पर पाकिस्तान के साथ है। तुर्की के अलावा इसके जितने 57 बाप हैं उसमें से कोई बाप नहीं आया पाकिस्तान का साथ देने के लिए, सिर्फ तुर्की आया। और इस तुर्की के साथ ये है कि लखेरा कह रहा तू बोल, वो कह रहा तू बोल। मतलब अब इससे जोड़िए सर कि सनसनीबाजों का गैंग जो गया था, इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी से या कहीं से फंडिंग थी, वरना सनसनीबाज मतलब हम लोग ये करें कि हम लोग को यदि विदेश का अवसर मिलेगा, यदि अपने पैसे से कहीं तो आसपास के देश कहीं जाएंगे, बहुत से बहुत इच्छा होगी यूरोपीय मतलब तुर्की, जब आप पूरी दुनिया घूम लेंगे तो चलेगा, चलो तुर्की भी घूम लेते। ये पहली बार गया विदेश यात्रा पर, ये चुट्टा, ये तुर्की ही गया। एक हफ्ते की यात्रा में था, एक हफ्ते की यात्रा में था, पूरा घूम रहा था, दामाद बना हुआ था, जगह जगह इसको लोग मिल रहे थे। वो मनीष जी बिल्कुल वही कहानी है, बिल्कुल वही कहानी, सेम कहानी। देखिए इसमें मौका है तो दर्शकों को भी ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा कि जैसे ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में मेहमान मिल रहे थे, जो उसको 7 स्टार होटल में रुकवा रहे थे, उसको बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों में घुमा रहे थे, वैसे ही सनसनीबाज को तुर्की में मेहमान मिल रहे थे, जो इसको पूरा इसको अपना मेहमान बनाए हुए थे, और इसका करोड़ों रुपए इसके ऊपर उड़ा दिए उन्होंने 7 दिन के अंदर। तो ये ज्योति मल्होत्रा का जेंट्स रूप है ये आदमी। और ये सनसनीबाज भी तो गया था, सनसनीबाज भी जर्मन शेफर्ड के लिए गया, इन सब इलाकों में सनसनीबाज भी, सॉरी सनसनीबाज कह रहा हूँ, ये पारा भी तो गया था। आपको याद होगा पारा भी इसी ढंग की यात्रा पर गया हुआ था। नहीं आ रही मनीष जी, आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी? अच्छा, एक बार तब पूरा से आप वो ऑफ है, मुझे लगता है कट गया है।
हम मेरी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है एकदम। आपकी नहीं आ रही, आपकी नहीं आ रही। व्यूअर्स एक बार लिख दें कि क्या आप मेरी आवाज उनको मिल रही है, यस तो फिर सतीश जी को हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके फिर से आपकी आवाज जोड़ेंगे। चली गई। जोड़िए एक बार कि मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है क्या, व्यूअर्स को मेरी आवाज मिल रही है क्या? मेरी आवाज यदि मिल रही है तो एक बार यस कर दीजिए। बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है व्यूअर्स को, इसका मतलब आप दोबारा आइए। नहीं, मेरी आप आवाज दोबारा सबको, आइए दोनों तो। की आवाज पब्लिक को मिल रही है, मेरी आवाज आपको नहीं मिल रही है। तो आप दोबारा आइए, या मैं आता हूँ। हाँ आप दोबारा आइए, क्योंकि या मैं आता पब्लिक को हूँ। दोनों की आवाज मिल रही है। तो मैं बताऊं तब तक सतीश जी दोबारा से डिस्कनेक्ट मैं करता हूं। सतीश जी आ रहे हैं दोबारा से, फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको मेरी आवाज नहीं मिल रही है, दोनों की आवाज आ रही है, उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत ये वो इसीलिए हो रही थी। अब हमने इसीलिए समझा कि सोचिए ये पूरा फेक नैरेटिव कैसे गढ़ा गया, ये पूरा षड्यंत्र इस देश के खिलाफ कैसे किया गया। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में बहुत गहराई से इन्वॉल्व थी।